Wonderful, wonderful. Yeah, I could very sense from active also. So I leave it to the committee now because we're nearing 9 o'clock. So is it follow me? Who's doing the formalities? Rikisha will start now. Okay, okay. So please take over. Ma'am, shall we start now? Can start exactly at 9. Yes, ma'am. 1 minute to go. Yeah. Please. Thank you. A very good morning to one and all to this beautiful morning and wish you all a very happy International Day of Yoga. The International Day of Yoga has started its inception by 2015 and it has been almost 6 years that and every year we celebrate this day beautifully. Yoga has now become a trend that has been flourishing from over the years, and we can say that it is a platform people embrace, practice, and enjoy every day. Before we start off, introduce our resource person for the day, I would request our principal ma'am, Professor Mala Pandran ma'am, to please give some motivating words before we start off today's session. Mala ma'am, please. Sure. So good morning to everybody. I'm delighted to see that 40 of you have already joined. I am sure that more teachers will definitely be joining in. Very good morning to our resource person. I'm sure that you're going to have a very energetic and motivating session. And as we were discussing before the session started formally, I think that we should really take it up and be motivated to do yoga on a regular basis and not just the enthusiasm of a yoga day and doing it for a few days after that. In these very stressful times, and especially when we are indoors and we have lack of physical activity, I think this is a very important part of life and very important habit that we should make part of our daily routine. So with those few words, over to ma'am. And we will definitely try to be as participatory as possible. Thank you. Thank you, ma'am. Today with us, we have a wonderful person named Salima Poonawala. I would request Polymi ma'am to please introduce Salima ma'am. Sure. Good morning, everyone present here. On the occasion of the 7th International Day of Yoga, I take this opportunity to wish a very good health to all and to introduce a corporate trainer and a yoga coach, Ms. Salima Poonawala, our resource person for today. Ms. Salima Poonawala, who describes herself as nature lover, dreamer, and eternal optimist, decided to swap her corporate career with that of the yoga coach after experiencing the curative powers of yoga. With the objective to educate and motivate people towards achieving holistic health, Ms. Salima has, in the past decade, catered to a diverse clientele, including corporates, students, senior citizens, and expectant mothers. She has conducted yoga sessions for corporates like HUL, Hindustan Unilever, Reliance Jewels, Bajaj Consumer Care, All Cargo Logistics, Cosmos Maya Digital Studios, and Emarticus Learning Private Limited. She has also conducted workshops for Singapore International School, Mumbai. Besides doing Facebook Live yoga sessions for Pinkathon, she conducts ongoing yoga classes for over 100 families spread across 6 countries. Ms. Salima is an Ayush Ministry certified yoga wellness instructor, has the 200-hour certification Hatha Yoga from the Kaivalya Dham, Lonavala, and also has a certification in Ashtanga Yoga and Therapy Yoga for Inner Peace, Mumbai. In addition, she has a certification in pre and postnatal yoga from Vinyasa Institute, Mumbai. Thank you so much, Ms. Salima, for accepting our invitation
We all, the faculty and staff members, are very excited and are happy to have you with us today. I hereby extend a warm welcome to you and request you to conduct the session. Thank you. Thank you so much, Follow Me, ma'am. That was wonderful. And I am also equally happy to be here. It is always a pleasure to be a part of organizations that think so much about the well-being of their teams. So it will be equally an honor for me to do this. I am assuming that everybody is able to see me. In case you want to spotlight me, make it easier. One request that I have in every session that I do is I would request maximum people to turn on their videos. If there is some reason because of which you just can't turn it on, that I will understand and respect. But otherwise, what happens is going through a one-way screen and not seeing if you're doing something correctly or incorrectly does not work. Okay? तो आप लोग तो समझते हैं, आप में से कई ज़्यादा लोग teaching members हैं. So you know that it is important to be able to see the student. Okay, so we will get started and I will briefly share the agenda and the idea that I came to this class with. Rightly for some time. And, everybody else needs to be on mute mode, I think. Yeah, so just please take that into consideration. Yeah, so like I was saying, we've all been locked in for so long now that now, you know, my regular students are also telling me that some members of the family are either going through aches and pains which they never had in their lives. Yeah, constipation and digestion related issues have cropped up. Hormonal issues have cropped up, you know, and it is still an area of concern because like we know, the pandemic is far from over. My goal and my mindset for this class today is to teach you certain things that you can do in very little time. Okay, today we're going to do it over an hour because I would like to teach it to you in such a way that after this you should be able to do it on your own. Even if you don't join a class or if you don't have a teacher, somebody checking on you, you should still be able to do it right. So that is the idea behind, you know, taking 1 hour to do this. Once you learn it, you should be able to do all of what I'm going to teach you in maybe half an hour. Okay, so I will cater to everything. I will cater to the musculoskeletal system. I will cater to the digestive system. I will cater to our hormonal, you know, the endocrine system as well. These three are extremely important. And I will share a few tips that you can bring into effect in your daily routine. We're all working from home. We spend a lot of time being seated. So how to make the most of that time also? Okay, that is also something that I will try to teach you. तो सबसे पहले हम लोग सीधे बैठेंगे. Okay, a lot of times we don't understand. I'm just going to turn my screen so that you're able to see me better. Okay, and bring a few things to your awareness. I tell all my students that no matter what pose you are doing, yoga is far beyond just the pose and the asana and the posture. Awareness is more important. Okay, awareness and technique both are important. If you have the awareness, you will practice it with the right technique. Technique can be learned. Awareness has to be inculcated. So your every student's major goal should be to do whatever they're doing with awareness. Okay, so we sit, you know, we sit on the ground, we sit in cross-legged. This is called Sukhasana in yogic language, I suppose. ये हम बहुत बार करते हैं, but maybe we don't know if we are doing it right or not, or if our body is comfortable doing it right or not. Okay, so what happens a lot of times, we are leaning forward, but we don't realize that the spine is leaning forward. 1 sec. Suddenly my screen has shifted. Yeah. So we don't realize whether we are leaning forward or whether we are sitting straight. Okay. Also, a lot of people, although the name of the pose is Sukhasana, or isse aapko sukh milna chahiye, a lot of people are not comfortable sitting like this for whatever reason. Kabhi knee aches hota hai, kabhi back muscles weak hote hain, kabhi hips bahut tight hote hain. तो हमको पता नहीं चलता if we are doing it right. So if you're one of those people जिनके पैर ऐसे ऊपर रहते हैं या आपको इसमें discomfort होता है, so what you should be doing is you should broaden the base. So you move the knees far from each other. I would appreciate if you do this with me. You move the knees far from each other and you bring the feet closer to each other. वरना usually हम knees को close लेते हैं और पैर एक दूसरे से दूर रखते हैं. हम अगर इसको reverse करें, हम knees को दूर करें और हम feet को close लाएं, we are broadening the base. We are automatically moving the thighs towards the ground. So your legs and your back is not fighting gravity and, you know, getting degenerated faster than it should. So this becomes better.
and you are also in a better position to assess if your spine is perpendicular from the floor. Okay, how do you know? Because when you don't feel heavy in the lower abdomen. Okay, आपका abs जो पूरा सीधा होता है, you sit like this and your abs are compressed. Sit like this for some time. Okay, your chest has caved in, so your lungs can't breathe fully. Okay, lungs have tremendous capacity, and we all know how much we need to take care of our lungs now more than ever. I mean, we've learned it the hard way. So when you sit like this, your lungs are not fully open. Your abdominal area is compressed. So all the organs in this area of the body, they are all compressed. Excuse me, ma'am. Ma'am, can I just interrupt for a minute? We have a mixed audience, so if a little bit of both languages is possible. Sure. जरूर मैम. Thank you for bringing that to my awareness. तो जब हम ऐसे बैठते हैं, like I said, तो हमारे lungs जो है वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं. हमारे जो ऑर्गन्स हैं इस पूरे एरिया में, इतनी सी जगह में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो वो भी जो है हमारे श्रिंक हो जाते हैं. इफ यू सिट स्ट्रेट, जैसे ही आप सीधा बैठते हैं, यू कैन फील द लंग्स आर ओपन. ये पूरा एरिया सीधा है. ओके, तो इससे क्या होता है कि इनको जितनी स्पेस मिलनी चाहिए वो मिलती है. दीज ऑर्गन्स आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस बेटर. ओके, जैसे हम अगर एवरीबडी इज ट्रैवल्ड, मुंबई में तो सब लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर चुके हैं, कैसे दब के हमको ट्रैवल करना पड़ता है. व्हाट अ टॉर्चर इट इज. वी वेट कि कब स्टेशन आएगा और हम उतरेंगे, राइट? सो व्हेन वी आर सिटिंग लाइक दिस, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द बॉडीज रिक्वायरमेंट. ओके, हम उससे विरुद्ध काम कर रहे हैं. तो हम सीधा बैठेंगे तो वो ही हमारी बॉडी के लिए सबसे पहले तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग. ओके, नाउ कंटिन्यू सिटिंग लाइक दिस, और हम लोग थोड़े नेक मूवमेंट्स करेंगे. One very important thing which I share with all the corporates that I work with, and I would be happy to share it with you, is हम सब घर से काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, because we don't have work stations या cubicles जैसे कि हमारे ऑफिस में होते थे. हमारे पास जो भी है हम उसके साथ में काम कर रहे हैं, which is of course the right and the required thing to do. आप ये कोशिश जरूर करें कि आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए. ओके, अभी मेरा डिवाइस थोड़ा सा नीचे है, which is still okay, but if I keep it very low and if I'm constantly working like this, I would like to tell you कि जो सर्वाइकल एरिया होता है, हमारी गर्दन का जो एरिया होता है, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा वल्नरेबल टू इंजरीज वाला एरिया होता है. मैक्सिमम इंजरी होने के चांस आपको पहले गर्दन में होते हैं और उसके बाद लोअर बैक में होते हैं. सो दीज आर वेरी वल्नरेबल, मतलब हमको उनका ज्यादा ख्याल रखना है. तो कोशिश करें कि आप ऐसे ना करें. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन स्क्रीन्स ऑन आवर मोबाइल फोन्स, तो आप कोशिश करें कि आप उसको सामने रखें, एंड दैट विल एटलीस्ट नॉट, लाइक आई सेड, एक्सेलरेट द वेयर एंड टेयर. वरना एजिंग जो हमारी है, द आइडिया इज टू एज इन सच अ वे दैट एज डज नॉट हिट यू. कि वो जो हम बोलते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारी उम्र हो गई, अब हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने सारे डूज एंड डोंट्स ऐड हो जाते हैं हमारी लाइफ में. So it is important that we take care of this carrier, okay? The body in yoga is called the carrier of the spirit. तो आप इसका ध्यान रखें ताकि no matter what your age, you're able to do what you want to do, you're able to perform your duties or dharma, as yoga says, okay? तो इस बात का ध्यान रखें. On that note, this is the Gyan Mudra. You join the tips of the thumb and forefinger. You keep it like this, okay? One more thing, if you keep it like this, हाथ ऐसे आगे रखते हैं, पैर के आगे, यू सी द स्पाइन इज लीनिंग फॉरवर्ड. आप हाथ थोड़ा सा एल्बो से बेंड करके हाथों को आप नीज के अंदर ही रखें. दैट विल हेल्प यू टू कीप द स्पाइन टॉल. सामने देखिए, चेक इफ योर चेस्ट इज ओपन, चेक इफ योर एब्डोमेन मसल्स, पूरा जो ट्रंक है वो आपका सीधा होना चाहिए. जैसे पेड़ सीधा होता है वैसे आपके शरीर का ट्रंक जो है वो सीधा होना चाहिए. एंड विद दैट वी विल डू सम सिंपल नेक मूवमेंट्स which you can do, after every few hours, because, हम इतना devices देखते हैं. पहले आप सांस भरें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा एक तरफ टर्न करें. You can start on any side. मैंने राइट में टर्न किया है तो लेफ्ट साइड पे मुझे स्ट्रेच अच्छा फील हो रहा है, which is important. Stay there. Try bringing your chin parallel to the shoulder और वहीं पे रुके. नॉर्मल ब्रीदिंग, कुछ देर हम रुकेंगे. सांस भरते हुए आप गर्दन को फिर से सामने लेकर आएंगे. एक्सहेल एंड टर्न ऑन द अदर साइड. सांस छोड़ते छोड़ते दूसरी तरफ. कोशिश करें आपके कान मूव नहीं. अगेन इनहेल एंड सेंटर,
exhale and change. सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए चेंज। सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए चेंज। सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए चेंज। इनहेल एंड स्लोली रिटर्न टू सेंटर। अब धीरे धीरे आप चिन को नीचे लेकर जाएंगे। आपको पीठ को सीधा ही रखना है। When you take the face down, don't round the back like this. Again, your lungs will collapse. Spine को सीधा रखेंगे, सिर्फ चिन को नीचे ले जाएंगे। Stay there. Normal breathing. अब धीरे धीरे सांस भरते भरते चेहरे को उठाएंगे और ऊपर सीलिंग की तरफ फेस करेंगे। आप आंखें बंद रख सकते हैं, होठों हल्के से मिलाकर। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन नीचे। स्टे देयर। धीरे धीरे सांस भरते भरते फिर से फेस सीलिंग की ओर। We will do this one more time. सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन नीचे, पीठ सीधी। गुड। सांस भरते भरते गर्दन पीछे, एंड धीरे से रिलैक्स कर। गुड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल नेक मूवमेंट। इसको ब्रह्म मुद्रा कहा जाता है। ये आप लाइक आई सेड, आप अपने काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके, इट हार्डली टेक्स अ फ्यू सेकंड्स एंड यू कैन डू दिस। इट विल कीप योर नेक इन गुड शेप। इवन दोज विद सर्वाइकल, कभी सर्वाइकल की शिकायत होती है, स्पॉन्डिलाइसिस की शिकायत होती है, उसके लिए भी ये किया जाता है। इफ यू एवर अंडरगॉन फिजियोथेरेपी तो वो भी ये सिखाते हैं। सो वेरी सिंपल। ओके, अब अगली चीज जो हम करने वाले हैं इज फॉर द शोल्डर्स एंड द एरियाज अराउंड द शोल्डर्स। तो ये काम करके जब हम बहुत देर जब हम बैठे रहते हैं, हम ये राउंड कर लेते हैं। सो इट अफेक्ट्स द एंटायर स्पाइनल एरिया। द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हम जानते हैं, गर्दन के बेस से शुरू होता है और टेल बोन तक एक्सटेंड होता है। इट इज वेरी लॉन्ग और इसके अलग अलग हिस्से होते हैं और उन सबका ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड बिफोर आई टीच यू दैट, सम ऑफ यू, आप लोग तो इतने सारे सूर्य नमस्कार भी करके आए हैं, तो बहुत सारे बेसिक पोजेस आप जानते होंगे जो वज्रासन कर सकते हैं और जिनको घुटनों की शिकायत नहीं है। ऑल्दो वज्रासन इज गुड फॉर द नीज, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टेंटली तकलीफ रहती है तो शायद वज्रासन करने में आपको लगे कि आपकी तकलीफ बढ़ रही है। इन दैट केस यू कैन अवॉइड। अदरवाइज आप वज्रासन कर सकते हैं। ऐसे एक पैर को पीछे लेते हैं वज्रासन में, उस पैर के ऊपर नहीं बैठना है। ओके, मैं पलट कर भी आपको दिखाऊंगी। फिर दूसरा पैर भी ऊपर ले। ओके, और ये पीछे से कैसे दिखता है, आई विल शो यू। पैर ऐसे वी शेप में रहते हैं, एड़ियां दूर रहती हैं। सो योर हील्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। द टोज कैन आल्सो बी ओवरलैपिंग। बड़ा वाला टो एक दूसरे के ऊपर भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है। इसको वज्रासन कहा जाता है। तो बीच बीच में जो है आप ये ब्रेक भी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल नो कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है, आपने पैर मोड़ दिए तो ज्यादा ब्लड फ्लो आपके बेली के पास आता है, इंटेस्टाइन्स के पास आता है, तो वो डाइजेशन के लिए। इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद अगर आप 5 मिनट वज्रासन में बैठे, दिस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिनचर्या और रूटीन इन एंशिएंट इंडिया। तो आप ऐसे बैठे तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेशन ऑल्सो। तो जो लोग बैठ सकते हैं प्लीज बैठिए। इसी में बैठ के हम शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे। ओके, पहले देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद में करिए। हम हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा जो है वो हम कांधे के एकदम एज पे रखेंगे, ऑन द रिम ऑफ द शोल्डर, और हम एल्बोस को आगे ज्वाइन करेंगे। मैं आपको ये साइड वेज दिखाऊंगी, फ्रंट से भी दिखाऊंगी, साइड से भी दिखाऊंगी। आप एल्बोस को आगे ज्वाइन करेंगे, सांस भरते हुए। एज यू इनहेल यू स्लोली टेक द हैंड्स अप। हाथ देखिए मेरे कान के अगल बगल है और कोहनियां जो है ऊपर सीलिंग को पॉइंट कर रही है। फिर हम इनको पीछे पुश करेंगे, कोहनियों को पीछे। You have to push the elbows backwards, then bring it to the side of the body, and then again connect in the center. Okay, एक बार और देखिए, फिर मैं ये आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगी
और फिर आप इसको करेंगे। ये करते हुए आपको पीठ को सीधा रखना है। सो यू जॉइन इन द सेंटर, इनहेल एंड टेक देम अप। हाथों को कानों के पास रखना है। कुछ लोग ऐसे घुमाते हैं, यहीं से घुमाते हैं। देखिए हमारे कुछ शरीर के जॉइंट्स हैं जिनमें 360 डिग्री रेंज है। जैसे गर्दन है उसको आप पूरा गोल घुमा सकते हैं, शोल्डर है उसको आप पूरा गोल घुमा सकते हैं। हम वो घुमाना छोड़ देते हैं और फिर हमको फैंसी कंडीशंस आजकल निकली हैं, जैसे जिनका पहले नाम नहीं सुना था, दैट इज वन कॉलिंग देम फैंसी, जैसे फ्रोजन शोल्डर। इट इज अ रियल कंडीशन, इट इज अ पेनफुल कंडीशन। व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द बॉडी द वे इट इज मेंट टू बी यूज्ड। अगर हम यूज करते रहेंगे तो जंग नहीं लगेगा। ओके, तो हाथ आप आगे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, एल्बोस को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, कानों के पास हाथ रखेंगे, फिर कोहनी को पीछे पुश करेंगे, फिर नीचे और फिर आगे। ये करते हुए पीठ सीधी। ओके, आई वुड लाइक टू सी यू ऑल डूइंग 5 ऑफ दीज। चलिए सभी लोग अंगूठा जो है बाहर रखिए, आगे कोहनी को मिलाइए, सांस भरते हुए ऊपर उठाइए और फिर पूरा पीछे पुश करिए, पूरे चेस्ट को एक्सपांड करिए। अगेन गुड फॉर द लंग्स, बहुत अच्छे। ओके, और फिर से पूरा ऊपर ले जाइए। अगर एक बार आपकी कोहनी आगे मिली है, मतलब आपकी बॉडी का उतना रेंज है, तो हर बार उसको मिलाइए। ओके, यू आर डूइंग वेरी वेल। पूरा ऊपर, पूरा पीछे, पूरा नीचे, फिर से पूरा आगे। ओके, इस तरह से पूरा सर्कल आपको बनाना है। वेरी गुड। सिर्फ 5 करेंगे, इसके बाद हम इसको उल्टा भी घुमाएंगे। Whatever movement you do circular, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना चाहिए। ओके, तो इसका उल्टा भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी, उसके बाद आप कर सकते हैं। So you can मैम continue अगर sitting. मैम जी मैम इन जी केस काफी लोगों को नीचे बैठने के लिए नहीं जमता रहेगा, तो कैन दे सिट इन अ चेयर और एनीथिंग, ऐसा कुछ रहेगा तो वो यस भी आप बताए तो अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनको नीचे बैठने में शिकायत है, बहुत देर नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के करिएगा। चेयर के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब चेयर कौन सी आपके लिए सूटेबल है, कौन सी नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, वरना बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि अगर हमारा बेड का मैट्रेस जो है, जो गादी है, वो अगर बहुत सिंक होती है, तो हमारे हिप्स हमारे नीज से नीचे चले जाते हैं, जो अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। तो आई विल शेयर ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, बट थैंक यू फॉर आस्किंग। जो लोग फिलहाल अनकंफर्टेबल है, यू वांट टू सिट ऑन अ चेयर, सिट ऑन अ बेड, सिट ऑन अ सोफा, प्लीज डू दैट। ओके, एंड दीज थिंग्स, ये जो नेक मूवमेंट हुआ, ये हुआ, ये खड़े रह के भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल बैठ के दिखा रही हूँ। ओके, अब इसको रिवर्स करने के लिए हाथ पहले नीचे ले जाएंगे, दोनों कोहनियां, फिर पूरा पीछे, फिर पूरा ऊपर। आपके हाथ कान से थोड़े पीछे आने चाहिए, फिर आगे आप जोड़ेंगे। ओके, पूरा पीछे, पूरा ऊपर, फिर पूरा आगे। पूरा सर्कल बनाएंगे आप, आधा नहीं, पूरा सर्कल बनाएंगे। वेरी नाइस। स्लो करिए। जब हाथ पीछे ले जाते हैं तो सांस भरिए। जैसे ही आपका सीना चौड़ा होता है, द मोमेंट योर चेस्ट एक्सपांड्स, दैट इज योर क्यू टू ब्रीथ इन। उस समय सांस भरेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा। जब हाथ नीचे आते हैं तो चेस्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी सांस खाली करनी है। जस्ट रिमेंबर दिस मच। ओके, इट इज वेरी सिंपल। वेरी गुड, वेरी गुड। स्लो करें। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज मिनिमम। ओके, सो आई विल जस्ट गेट अ चेयर नाउ, और आप इसको ध्यान से समझिए कि ये कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाजार जाके नई चेयर लेकर आइए, मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में जो चेयर है, उसको पहले तो आप समझ लें कि वो आपके लिए कितनी सूटेबल है, और क्या वो कंट्रीब्यूट कर रही है इन योर लेग पेन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और अगर आपको उसको कस्टमाइज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज अ रेगुलर चेयर, ओके, एंड दिस इज नॉट द राइट चेयर फॉर मी। आई विल टेल यू व्हाई। जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं, आपके हिप्स और आपके घुटने जो है ना, वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। सो एज यू कैन सी, मेरे हिप्स ऊपर हैं, और दूसरी एक चीज जो आप शायद समझ जाएंगे, इसका बेस जो है वो फ्लैट नहीं है, इसका बेस जो है वो थोड़ा यहाँ से नीचे जाता है। ओके, इट इज अ कर्व ऑफ सॉर्ट्स, दैट इज नॉट अ गुड चेयर। ओके,
तो जब आप बैठे तो आपके घुटने और आपके हिप्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब मेरे घुटने नीचे हैं, तो अगर आपकी भी ये सिचुएशन है तो आप क्या करें? सो आई हैव, बिकॉज आई टीच, आई हैव योगा ब्लॉक्स और योगा ब्रेक। जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, आप नीचे एक दो तकिए रख सकते हैं। घर में वो मसलन होता है, वो गोल तकिया होता है, बोल्स्टर, वो है, या कुछ भी, आप कुछ उसकी हाइट बढ़ाने के लिए, आई जस्ट शो इट टू यू विद अ योगा ब्लॉक। So like you see, this is a yoga brick. Okay, if I place this on the floor, अभी आप मेरे घुटनों का लेवल देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर पैर रख लिया, अब मेरे घुटने और हिप स्ट्रेट लाइन है, अब ये चेयर मेरे लिए सही है। Another thing, it may break your heart a little, थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है सुन के, कभी भी बैक रेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। One of the reasons why we have back pain and why our core gets weak, हम सब ने कोर शब्द बड़ा सुना है, उसका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो नहीं पता होता है। कोर में आपके सिर्फ पेट नहीं आता है, सिर्फ एब्डोमिनल एरिया नहीं आता है, वो तो आता ही है। Along with that, your lower back, your hips are also a part of the core. तो जब हम बहुत ज्यादा बैक रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक तो we are not aware कि हमारी पीठ सीधी है या नहीं। अब ये चेयर की बनावट ही ऐसी है कि अगर मैं इस पे ऐसे बैठूंगी, आई एम आस्किंग फॉर ट्रबल, मैं न्योता दे रही हूँ तकलीफ को कि आओ मेरे पास, बिकॉज दिस इज ऑल गोइंग टू गेट वेस्टेड एंड डिटीरियोरेट सूनर देन इट शुड। ओके, तो कोशिश करें आज से कि आप कुछ कुछ देर बैक रेस्ट का सपोर्ट छोड़ें, आप पीठ को सीधा रखें। What also helps is to lift and roll back shoulders. आप बैठेंगे तो ये करके देखिए, कांधों को थोड़ा ऊपर लीजिए, पीछे लीजिए, नीचे की ओर पुश करिए। आपके कान हमेशा कानों से कांधे दूर होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, इनको नीचे पुश करके रखिए, चेस्ट को ओपन करिए। जैसे ही आप बैक रेस्ट छोड़ेंगे ना, आपका कोर एक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे लोग, मेरे करियर में जो सवाल मैंने सबसे ज्यादा सुना है वो यही सुना है कि पेट कैसे कम किया जाए, पर हम ये नहीं सोचते कि पेट बढ़ा कैसे। वो बढ़ा इसलिए क्योंकि हमने उसको, इन मसल्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो वो तो खराब होने ही थे, राइट? दे लूज देयर टोन, दे लूज देयर इलास्टिसिटी, दे लूज देयर स्ट्रेंथ। यू वांट दैट स्ट्रेंथ बैक, यू मेक देम वॉक। उनसे आप काम करवाइए जिस तरीके, जो काम करने के लिए उनको बनाया गया है, तो वो ठीक रहे। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स, क्योंकि आप लोग घर से काम कर रहे हैं, सब लोग कोई ना कोई चेयर यूज कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिए। और अब एक स्ट्रेच में आपको चेयर पर भी दिखाऊंगी। ओके, ये आप लोग नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नाउ दैट आई एम ऑन द चेयर, आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आप पहले तो यू मेक श्योर दैट यू गेट दिस लेवल राइट। आप पूरी सांस धरें, एक हाथ को आप पीछे ले जाए। अगर आपका चेयर पे बैक रेस्ट है ठीक है, अगर बैक रेस्ट नहीं है तो बेस तो है ही, तो आप हाथ नीचे ले जा सकते हैं और आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है। सो व्हेन आई स्टार्टेड, मैं इस तरफ मेरी अपर बॉडी फेस कर रही हूँ। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करना है और ये जो सारे मसल्स हमारे ढांचे को सपोर्ट करते हैं उनको हमको स्क्वीज करना है। हम कपड़ा निचोड़ते हैं, उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलता है। जब आप अपने मसल्स को निचोड़ते हैं उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं। ओके, और आप कितनी भी क्लीन लाइफस्टाइल रखें, टॉक्सिन्स तो बॉडी में जमा होते ही हैं, no matter how clean you eat or how well disciplined you are. Okay, so everybody will have toxins, including yoga teachers. तो आप एक हाथ पीछे रख सकते हैं या तो बैक रेस्ट पर, या तो आप उसको चेयर के बेस पे रख सकते हैं। और आपको सांस छोटे छोटे, पैर वैसे ही रखने, हिप्स वैसे ही रखने, आपको कांधों को, चेस्ट को और कमर को घुमाना है। तो यू विल गेट दिस ब्यूटीफुल स्ट्रेच हियर। बहुत देर बैठ के काम करते हैं, पीठ दुखने लगती है, आप बीच बीच में ये स्ट्रेच करिए, गर्दन को भी घुमाइए। When you start doing these things, let's say every 1 hour or 2 hours, you will feel the difference. Okay, अब यही चीज मैं आपको जमीन पर दिखाऊं। It is very simple. पतंजलि योग सूत्र में 195 योग सूत्र है, जिसके ऊपर सिर्फ 3 सूत्र आसन प्रैक्टिस के ऊपर है, बिकॉज योगा इज फार मोर देन जस्ट आसन प्रैक्टिस। उसमें जो सबसे पहला सूत्र है आसन के ऊपर, इट गोज लाइक दिस, ओनली 3 वर्ड्स,
स्थिरम सुखम आसन। तो जब आप योगा आसन करते हैं तो आपको उसमें स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे कंपन नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुखम, स्थिर सुखम आसन। जब आप आसन करते हैं तो आपको उससे सुख मिलना चाहिए, टॉर्चर नहीं होना चाहिए। तो अभी आपकी बॉडी जिस किसी मकाम पर है, वट एवर लेवल of flexibility, strength, endurance, whatever you choose to call it, you will get better from there. But don't push your body कि जैसा वो स्क्रीन पे दिख रहा है या जैसा मेरे बाजू में कोई कर रहा है मेरा भी वैसे ही होना चाहिए. Our bodies have different journeys. Okay, respect that journey and give your body time. तो बैठ के आप ये ट्विस्ट कैसे करेंगे? आप सुखासन में बैठ गए, पीठ आपने सीधी रखी है, आपको जिस तरफ ट्विस्ट करना है वो हाथ आप पीछे रखेंगे, उंगलियों के फिंगर टिप्स पर, पंजा पूरा नीचे नहीं, ऐसे पीछे गिरना नहीं है स्पाइन को, आप स्पाइन को सीधा रखेंगे, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर रखेंगे, पूरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आप ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। ये जो हाथ पीछे है ये मेरा लेफ्ट हाथ है, इसको मैं अपने राइट साइड ऑफ द बॉडी के पास ले जाऊंगी, दोनों कांधों का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मुझे कांधे घुमाना है, चेस्ट घुमाना है, कमर को निचोड़ना है, और पीछे देखूंगी। ओके, जितना आप इस कांधे को घुमा सकते हैं आपको घुमाना है। यू विल फील अ स्ट्रेच फ्रॉम शोल्डर अप टू द ऑपोजिट हिप, और ये आपके पूरे जो, लेट मी टेल यू, दिस इज आल्सो वेरी गुड फॉर द पैंक्रियास, ये यहाँ के सारे ऑर्गन्स को स्क्वीज करता है, तो उनका जो प्रोडक्शन है, whatever they are producing, juices, enzymes, hormones, whatever they are producing, that gets better, the functioning gets better. तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमको जो रिस्क हमारी लाइफ में उत्पन्न हो जाते हैं उसको कम करने के लिए ये बहुत अच्छा है। I would like to see you all doing this now. We will do it at least 2 times each side. आराम से बैठे। ओके, लेफ्ट हाथ पीछे फिंगर टिप्स पर रखें, राइट हाथ अपने लेफ्ट घुटने पर रखें, और पहले पूरी सांस भर लें, और सांस छोड़ते छोड़ते पीछे वाले हाथ को घुमाना शुरू करिए। पीछे वाले हाथ को ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी पे लेकर जाइए, पीछे जमीन पर ही, और चेस्ट को घुमाइए, दोनों कोहनियां सीधी, चेस्ट घुमाइए, कपड़ा निचोड़ते हैं ना वैसे आपको कमर को निचोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग में बने रहें। वेरी गुड। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे आप सेंटर में रिटर्न आ जाएं, और सांस छोड़ते हुए आप दूसरी तरफ ट्विस्ट करें। Make sure you do it equally on both the sides. You have to take care of both sides of the body. गर्दन पीछे, पीठ लंबी, पीठ को आपको लंबा रखना है, गोल नहीं करना है। Okay, both sides we will do it at least 2 times and hold it for at least 5 seconds. Very nice. श्रिया जी, नीचे नहीं देखना है, जब आप पीछे घूमते हैं तो गर्दन से नीचे नहीं देखना है, आपको गर्दन सीधी रखनी है। ओके, उस चीज का ध्यान रखें। 2 बार हो जाए तो आप रुक जाएं। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आई एम हैप्पी टू सी दैट। Once everybody is done, I will take you all through the next one. Good. चलिए, it is good to see so many. प्रियंका जी जो बैठी हैं, आपकी पीठ थोड़ी राउंड है, उसको सीधा करिए। ओके, पीठ को लंबा रखिए। यस, चलिए अगला वाला देखिए। अगला वाला जो पोज है ये इतना सेफ है और ये इतना बेनिफिशियल है कि हर कोई इसको कर सकता है। देयर आर सेवरल पोजेस जिसमें थोड़े लिमिटेशंस होते हैं, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो कुछ पोजेस वो नहीं कर सकते, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट ये वाला जो पोज है, इट इज वेरी सेफ, इट कैन बी डन बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग दोस जिनको स्लिप डिस्क जैसी भी शिकायत हो, तब भी ये पोज किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द कैट एंड काउ पोज। ओके, इसको माजर क्रिया कहते हैं। क्रिया और आसन में फर्क ये होता है कि आसन को ज्यादा देर तक उस पोजीशन में ठहरा जाता है, क्रिया में आप मूव करते रहते हैं। तो पहले इसके बेस पोज को कैसे आपको करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर किसी को घुटनों की शिकायत है और आपके लिए ऐसे ठहरना भी बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो आप घुटनों के नीचे एडिशनल ब्लैंकेट या मैट को डबल करके रख सकते हैं। तकिया मत रखिए। तकिए का ड्रॉबैक ये है कि वो सिंक होगा, जैसे ही उसमें वजन बढ़ेगा वो दब जाएगा, वो दब जाएगा तो वो आपको सपोर्ट कैसे देगा, इसीलिए तकिया मत लीजिए। ओके, तो इसका बेस पोज यूं किया जाता है कि आप पहले कोहनी को घुटने से मिलाते हैं। यू स्टिक द एल्बोस टू द नीज,
और जहां पर आपके हाथ की सबसे लंबी उंगली खत्म होती है, ओके, मेरी वाली ये उंगली सबसे लंबी है, वो जहां खत्म होती है वहां पे आपके हथेली का बेस आना चाहिए। तो इफेक्टिवली आपके जो पंजे की लंबाई है वो एक पंजे की लंबाई जितना डिस्टेंस आपको आगे जाना है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, सो 1 palm length you walk forward। जब आप ऐसे आएंगे तभी प्लीज नोटिस आपके कांधे और कलाई स्ट्रेट लाइन में होगी, आपका हिप और घुटना स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर यही चीज आप अंदाजे से करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ स्ट्रेट लाइन में ना हो या आपके हाथ इस तरह से हो, तो इसमें आपको आसन का पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, आप ठीक से कर ही नहीं पाते हैं, बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो इसीलिए आप इस तरह से मेजर करेंगे। आपके घुटने जो है हिप विद अपार्ट, जितना हिप का डिस्टेंस है उतना दोनों घुटनों में डिस्टेंस। पैर के पंजे सुले हुए, ओके, बड़े वाले अंगूठे जॉइंट। अब ध्यान से क्रिया देखिए, उसके बाद में करिए। This has multiple benefits. It strengthens the entire spine and the muscles. It works on digestion. Okay, so it is very good for that as well. तो multi-purpose है। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएंगे और पेट को नीचे की ओर प्रेस करें। ऐसे नहीं रहना है, आपको हमेशा गर्दन को लंबा रखना। सांस छोड़ते छोड़ते आप गर्दन अंदर लेंगे। You bring the chin close to the body. You round the back. That is why it is called cat and cow. Okay? तो आपने गाय के ऊपर जो हम्प देखा है वैसे आपको पूरा अपनी पीठ को गोल करना है और आपको सांस छोड़ते छोड़ते नाभि को, पेट को अंदर खींचना है। Inhale and you come into what is known as the cat pose. This is the cat pose. Exhale and you come into the cow pose. फिर से ध्यान रखिए, अगर आप ब्रीदिंग भूल जाए, जब आप इस तरह से ऊपर जाते हैं आपका चेस्ट एक्सपांड होता है, तभी आपको सांस भरनी। जब आप इस तरह से अंदर जाएंगे आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तभी आपको सांस खाली करनी है, पेट को अंदर खींचना। ओके, वी विल डू दिस 10 टाइम्स। कम से कम इसको 10 बार करते हैं तब कहीं जाके कुछ बेनिफिट होता है। उसके बाद दिस इज द चाइल्ड पोज। अगर घुटनों में बहुत दर्द है तो चाइल्ड पोज नहीं करेंगे, दैट इज ओके। वरना चाइल्ड पोज में आप हिप को हील के ऊपर लगाते हैं, हाथ को ऐसे स्ट्रेच करते हैं। दिस इज अ रेस्टोरेटिव पोज। अगर आप बहुत अपसेट भी हैं, you know, there are certain poses that work very well on the emotions and the mood also. So this is a restorative pose. It helps you calm down the mind as well. And it is called child pose or बालासन। बच्चों को आपने ऐसे सोते हुए देखा होगा, इसलिए। चलिए आ जाइए, हम पहले माजर क्रिया या कैट एंड कैमल पोज करेंगे। आप कोशिश करें कि मुझे फेस करने की बजाय आप साइडवेज फेस करें, तो मुझे आपकी पीठ दिखाई दे। यू नो, जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, आपको मेरी पीठ दिखाई दे रही थी, मुझे दिखाई देगी तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। तो पहले आप एल्बोस को नीज से चिपकाएंगे, कोहनी को घुटनों से चिपकाएंगे, और जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है वहां पे आप अपने हथेली के बेस को लेकर आ जाएंगे, तो आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। वेरी गुड प्रियंका जी, बहुत अच्छा किया है आपने। हाथों की उंगलियों को फैला के रखिए, घुटने अपने हिप विद अपार्ट रखिए, पैर के पंजे सुले हुए। सांस भरते हुए आप गर्दन को ऊपर उठाएंगे और पेट को नीचे जमीन की तरफ दबाएंगे। नाइस। हाँ नितिन पवार सर, थोड़े हाथ पीछे लाइए, घुटनों के पास थोड़े हाथ लाइए, बिल्कुल सही, बस बस बस, अभी ऐसे ही करना है। और सांस छोड़ते छोड़ते आप लोग गर्दन अंदर लेंगे, पीठ को पूरा गोल करेंगे और नाभि मतलब नेवल को अंदर खींचेंगे, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन को भी अंदर खींचेंगे। ओके, वेरी गुड। फिर से सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पेट को आप पूरा नीचे की ओर प्रेस करेंगे, जमीन की ओर उसको प्रेस करेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा गोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट द नेवल एंड द लोअर एब्डोमेन। ओके, वेरी नाइस। मीनल जी वेरी गुड, सुभाष सर वेरी गुड। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पीठ को पूरा नीचे पुश करिए, नाभि को खींचने दीजिए, फील द नेवल elongating। सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा गोल करिए, सांस खाली करिए, अंदर लॉक करिए। वेरी गुड। अगेन इनहेल एंड चेंज इनटू कैट पोज। वेरी गुड डॉक्टर रूपाली। एक्सहेल एंड चेंज इनटू काउ पोज। अनीता जी बहुत अच्छे, नितिन सर वेरी नाइस।
Inhale and change into cat pose. श्रवण जी बहुत अच्छे. अनुराधा मैम वेरी गुड. cat pose. Exhale and change into cow pose. गर्दन अंदर, पीठ को पूरा गोल करिए, नाभि खींचिए, लोअर एब्डोमेन खींचिए. Inhale and change into cat pose. 10 बार करना है प्रियंका जी, मैं गिन रही हूँ, आप करते जाइए. Exhale and change into cow pose. Very good Neetu ji. Shraddha ji, very nice. Inhale and change into cat pose. Rakesh ji, Shahjahan sir, very good. Exhale and change into cow pose. Nice. Inhale and cat pose. Hips पीछे नहीं, follow me ma'am. Hips जहां थी वहीं रहेंगी. Yes. Exhale and change into cow pose. Very good. You all are doing very well. Inhale and cat pose. Exhale and cow pose. Very good. Inhale and cat pose. Exhale करते हुए cow pose. Last 2 reps. सांस भरते हुए cat pose. सांस छोड़ते हुए cow pose. सांस भरते हुए cat pose. पेट को पूरा नीचे दबाइए. सांस छोड़ते हुए cow pose. पीठ को पूरा उठाइए, गाय के जैसे पूरा उठाइए, नाभि को खींचिए एंड रिलैक्स. जो लोग चाइल्ड पोज में जाने में कंफर्टेबल हैं वो लोग चले जाएं. हिप्स को हील्स पर लगाएं, हाथों को आगे की ओर लंबा करें और पूरे स्पाइन को आप फील कर सकते हैं. इसमें आपका जो पूरा स्पाइन है उसको आपको स्ट्रेच करना है. कविता जी हाथों को लंबा करिए, एल्बो से बेंड मत करिए, लंबा करिए. जी कविता जी नीचे जाइए और हाथ एकदम लंबे करिए. कोहनी को मोड़ के रखेंगे ना तो बैक को स्ट्रेच नहीं मिलता है. वेरी नाइस. धीरे से आप लोग सीधे उठकर बैठ जाएं. ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुली. देखकर लगता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी योगा किया है एंड दैट इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी टू रियलाइज व्हेन आई एम टीचिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम कि पहले किया हुआ है. अच्छी बात है. ओके अगला वाला देखिए. ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए फॉर द सिंपल रीजन, जैसे कि मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं उनसे मुझे जानने को मिल रहा है कि लॉकडाउन के कारण क्योंकि हम ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे ना. सी वी वर नॉट मेड, इंसान को जो है वो बैठने के लिए नहीं बनाया गया था, है ना. हमको मूवमेंट के लिए बनाया गया है. वी आर मेंट टू बी ऑन द मूव. पर अब सिचुएशन ऐसी है कि सबकी सेफ्टी इसी में है कि हम ज्यादा से ज्यादा अंदर ही रहें, बहुत ज्यादा बाहर ना जाएं. उसके लिए अब उसको काउंटर तो करना पड़ेगा. अगर हम मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी मूवमेंट पे डिपेंड करती है. इसीलिए लोग वॉक पे क्यों जाते हैं? बिकॉज उनका मोशन अच्छे से पास हो जाता है. दे फील लाइट, दे फील एनर्जेटिक, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. अब बिना वो सब किए हम उसको कैसे मेंटेन करें, वो हमारे लिए चैलेंज है. तो ये जो आसन है इसको बद्धकोणासन कहते हैं और सिंपल जबान में इसको तितली बोलते हैं. तो इसमें हमको क्या करना है कि हमको हमारे पैर के पंजे, जैसे हम हाथ नमस्ते में ज्वाइन करते हैं वैसे पैर के पंजों को नमस्ते में ज्वाइन करना है. जैसे ही आप ये करेंगे, मैं आपको साइड से दिखाऊंगी, आप सामने से देख के भी गेज कर सकते हैं. मेरे कांधे नीचे हैं, मेरा चेस्ट अंदर है, मेरा एब्डोमिनल एरिया कंप्रेस हो गया है ना, मतलब पीठ गोल हो गई है. सी जैसे ही आप पैर अंदर लेंगे ना आपकी पीठ ऐसे गोल हो जाएगी. तो सबसे पहले आपको पीठ को सीधा करना है. ओके आप पैर जितना अपने बॉडी के पास रख सकते हैं उतना आपको रखना है. फिर आप पीठ को सीधा कैसे करेंगे? आप अपने हाथ पीछे ले जाएंगे और हाथों की मदद से आप पीठ को उठाएंगे, है ना. चेस्ट आपका हमेशा इस तरह से ओपन होना चाहिए. जैसे ही चेस्ट अंदर गया, हम जिंदा कब मानते हैं इंसान को? जब उसकी प्राण शक्ति, मतलब प्राण शक्ति हम ब्रीदिंग को रफली, प्राण शक्ति इज मच मोर देन ब्रीदिंग. जब तक सांस है तब तक आदमी को जिंदा माना जाता है. ओके अगर हम अपने बॉडी सांस की लेंगे तो चलती तो रहेगी जैसे भी, लेकिन जो ऑप्टिमम उसके फंक्शनिंग के लिए जरूरी है वैसे नहीं चल पाएगी. So you have to make sure that you keep the body in such a way that it is able to breathe the way it was designed to breathe. तो आप हाथ इस तरह से पीछे रखेंगे और the beauty of this is, देखिए जब आपका बैक ऐसे राउंड होगा ना आपके पैर थोड़े ऊपर रहेंगे. जैसे ही आप अपने बैक को सीधा करने लगेंगे वैसे धीरे धीरे आपके पैर और खुलने लगेंगे. ओके अब इसमें हमको बैठना है कुछ देर.
इनफैक्ट मैं आपको ये होमवर्क देकर जाऊंगी। हम घर से काम कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़े एडवांटेजेस भी हैं घर से काम करने के। हम जमीन पर बैठकर भी काम कर सकते हैं, हम पीछे बैक रेस्ट लेकर भी। तो इसमें क्या होता है, आप कितनी देर हाथ ऐसे नीचे रखेंगे। सो इफ यू वांट, आप किसी फर्नीचर पे अपने पीठ को टेक कर बैठ सकते हैं, लेकिन बैक को लंबा रखना इस तरह से, है ना। बैक को आप लंबा रखें और आप अपने हिप्स को चिपका कर रखें। ऐसे पूरा पीछे गिरना नहीं है, आपको हिप्स को चिपका कर रखना है ताकि आप इसको सीधा रख सकें। तो अब घर से काम कर रहे हैं तो आपके पास ये एडवांटेज है that you can experiment with these things and feel the benefit for yourself. आप यहाँ पे अपना डेस्क या कुछ भी रख के, उसके ऊपर अपना लैपटॉप या कुछ रख के आप कोशिश करें बीच बीच में कुछ देर आप ऐसे काम कर सकते हैं या नहीं। ओके, companies like Apple and Microsoft have come up with standing desks now because everybody realizes कि बहुत देर तक बैठे रहना ही हमारी बॉडी के लिए बहुत घातक हो सकता है। So they have standing desks. आप खड़े रहकर काम करिए, जब बैठना है बैठिए, जब खड़े रहना है खड़े रहिए। So you can experiment with these things. Like they say, yin and yang की जो theory है ना, that with everything that is white, some darkness will follow. So light and darkness will always follow each other. तो घर से काम करने के कुछ benefits भी हैं, उसका भी इस्तेमाल करें। Okay, so while you sit this, I will tell you why sitting like this is important. जिनके भी घर में बड़ी उम्र के लोग हैं, okay, ध्यान दीजिएगा। I hope कि ऐसा ना हो, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो जो घर में चप्पल पहनते हैं आप उनको कभी ध्यान से देखें तो वो चप्पल ना अंदर की तरफ झुक जाते हैं, टुवर्ड्स द हील्स। ओके, हम चप्पल पहनते हैं जहां पर हमारी एड़ी आती है ना, वो अंदर की तरफ हमारी चप्पल बहुत टाइम तक अगर पहनी हो तो, या कभी कभी बहुत कम टाइम में भी वो अंदर की तरफ धंस जाती है। यू नो व्हाई दैट हैपेंस? हमारा ये जो, आप बैठे रहिए, हाँ इसी तरह से टेक कर बैठिए, लेकिन बैठे रहिए और आप सुनिए। जब हमको पता होता है ना कि कुछ करने का बेनिफिट क्या है तो करने का मोटिवेशन बेटर होता है। सो आई वांट यू टू नो दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ये जो मसल है ना, जिसको हम साधारण जुबान में इनर थाई बोलते हैं, ठीक है, इसका हर मसल का एक रोल है बॉडी के अंदर। जब ये मसल हमारा वीक हो जाता है तब हमारी चाल बिगड़ जाती है, तब हमारा हिप का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इसीलिए वो चप्पल धंस जाती है, क्योंकि अब ये मसल शरीर का वजन उठाने के लायक नहीं रहा। ओके, another very important thing, okay, there are a lot of women in the house and this is important for the men also to know. Okay, जब हम इस तरह से बैठते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ओवरीज के लिए बहुत अच्छा है। Teenage girls, you know, mothers tell me that my teenage daughter has PCOD. I can't tell you how bad it feels. पहले ना एक उम्र के बाद हम सुनते थे 50-60 के बाद में किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को डायबिटीज हुआ। अब हमारे आसपास 20 साल 30 साल के लोग हैं जो जिनको जिंदगी भर डॉक्टर ने बोला आपको ये गोली खानी ही पड़ेगी। इट इज ट्रेजिक। ओके, and the solution is so simple. If we make small changes to the way we operate, like I said, आप घर से काम कर रहे हैं, आप ऐसे बैठिए ना, दिन में 15 मिनट ऐसे बैठिए, टीवी देखते हुए बैठिए, सब्जी काटते हुए ऐसे बैठिए। like they say, where there is a will there is a way. तो आप ऐसे बैठेंगे, एक तो आपके इनर थाइज जो है वो अच्छे रहेंगे, वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बुढ़ापे में चलने का, बैलेंस का, गिरने का जो तकलीफ है वो आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, like I said, this is very good for the reproductive system, not just for the women but also for the men. I hope nobody has to face this, but 10 years earlier or 15 years earlier, we did not see fertility clinics in every locality. आज आप जहां भी जाइए, I have friends who tell me कि जैसे ही मैं गायनक के पास जाती हूँ and I tell them I want to have a baby, they say आप fertility treatment करवा। it has become a money making business also and it has लोगों के emotions के ऊपर encash करने वाली बात हो गई है। Solution is very simple. जब हम ऐसे बैठते हैं, हमारा जो pelvic एरिया है, जो रिप्रोडक्टिव एरिया है, वहां पे फ्रेश ब्लड, ज्यादा ब्लड सप्लाई जाता है। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना ऑक्सीजनेटिंग, जैसे कैंसर में भी प्राणायाम क्यों करवाते हैं? बिकॉज वेयर द बॉडी हैज अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव। So apart from eating the right food, the body needs the right amount and the good quality of oxygen and blood circulation. वो सर्कुलेशन कम हो जाता है। हम जो बोलते हैं ना कि पैर बैठे बैठे पैर में खाली चढ़ गई, पैर सो गया, नीडल्स एंड पिन सेंसेशन, व्हाट इज ऑल दैट? इट इज लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। थोड़ा मूवमेंट कर लेते हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ओके, जैसे जानवरों में होता है ना, वो तो जब हम पेट रखते हैं हम उनको वेट के पास ले जाते हैं। जो जानवर ऐसे खुले में रहते हैं, डोंट गो टू डॉक्टर्स, दे लिक देमसेल्व्स एंड दे हील देमसेल्व्स।
So every living organism has an inbuilt healing mechanism. So you make these changes, ये करने से back pain भी कम होता है. Stiff hips, stiff hip joints are a very major reason of back pains. क्योंकि हमारा बैक जो है उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है फॉर स्टिफ हिप्स. तो जब आप ऐसे बैठते हैं, अभी तो टेबल चेयर का कल्चर आ गया, वरना जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपके हिप्स, आपका बैक, उनके जो जॉइंट्स है वो उनकी मोबिलिटी अच्छी होती है, तो आपको पेन जल्दी से होता नहीं है. सो आई डू होप दैट यू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज इन योर सेल्फ. और मैं एक और आखिरी आसन आपको बताना चाहती हूँ जो हम लेट के करेंगे. एक्चुअली मैं आपको 2 आसन बताऊंगी. अगर आप में से किसी को लोअर बैक की शिकायत है, लोअर बैक में पेन है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और बाकी सबके लिए भी ये स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है. अगर राइट नाउ इफ यू हैव पेन, ये बेड पे करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि गादी आपकी दब जाएगी और आपका बॉडी जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा. लेकिन बहुत घरों में वो जो मार्बल के स्लैब्स होते हैं खिड़की के पास, बैठक जिसको हम बोलते हैं, वैसा कुछ है, सख्त है, जो दबेगा नहीं, तो आप उस पर कर सकते हैं. तो अगर आपको बैक में फिलहाल भी अगर पेन है, तो आप ऐसे एडिशनल ब्लैंकेट या कुछ लगाकर आप उसके ऊपर लेट सकते हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू सेतुबंध आसन और द ब्रिज पोज. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पोज है. इट इज वन पोज दैट वर्क्स वेरी वेल ऑन हॉर्मोन्स आल्सो. तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लाइक वी नो इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. तो जब ये हम पोज करते हैं तो हमारा एड्रीनल ग्लैंड जो है इट गेट्स अ लॉट ऑफ नरिशिंग ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन. तो वो हमारे बीपी को भी थोड़ा मैनेज करने में हेल्प करता है. ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेटना है, आपको दोनों पैरों को फोल्ड करना है इस तरह से. आपके घुटने जो है वो हिप विथ अपार्ट रहेंगे. जितना आपके हिप्स का चौड़ाई है उतना आपके घुटनों में अंतर रहेगा, और आपके जो पैर के पंजे हैं वो थोड़े से हिप से थोड़े से ही ज्यादा, 1-8 इंच से थोड़े ज्यादा ब्रॉड रहेंगे. आपका जो घुटना है और एडी है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनना चाहिए. ठीक है, ये आसन करने के लिए, अच्छे से करने के लिए, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, नोटिस माय शोल्डर्स. माय शोल्डर्स आर नॉट रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड. ये चीजें हम कभी ध्यान नहीं देते. चीज आपको ध्यान देना जरूरी है. आई टेल यू व्हाई. अब मुझे शोल्डर्स को रेस्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं चेस्ट को लिफ्ट करूंगी. यहाँ पीछे एक हिस्सा होता है कॉल्ड शोल्डर ब्लेड्स और स्कैपुला, है ना, वो जो बाहर आती है, वो हड्डी हमको पता चलती है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रही है. वैसे हम उन हड्डियों को पास में लाएंगे, चेस्ट को उठाकर. नोटिस, पे क्लोज अटेंशन टू द शोल्डर्स एंड हाउ एवरीथिंग विल चेंज आफ्टर दिस. सो आई एम लिफ्टिंग द चेस्ट. वो हड्डियां मैंने क्लोज ले ली, फिर जमीन पे लगा दिया. अब कांधे नीचे लग गए और चेस्ट पूरा ओपन हो गया. सो दिस इज वेरी गुड फॉर द हार्ट आल्सो. इट हैज अ वेरी कामिंग इफेक्ट. इट्स अ रेस्टोरेटिव पोज. आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आप ये पोज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा. आप हाथ जमीन पर रख सकते हैं. पूरी सांस भरेंगे. पहले सांस छोड़ते हुए आपको हिप्स को उठाना, एड़ी को जमीन पे प्रेस करना, और धीरे धीरे आपको ऊपर आना. सांस आपने पूरी बाहर कर दी. अब आप सांस भरना शुरू करें. हर बार जब आप सांस छोड़ेंगे आप खुद को थोड़ा और ऊपर पुश करें. इसमें आपको थोड़ा आपके क्वाड्रिसेप्स पे, द फ्रंट ऑफ द थाई मसल इज कॉल्ड क्वाड्रिसेप, वहां पे थोड़ा लगेगा कि बॉडी का वेट वहां पे जा रहा है, थोड़ा वहां प्रेशर आ रहा है. इट इज ओके. उसको स्ट्रॉन्ग बनाए. आपको ऊपर ही रहना है. कम से कम 15 सेकंड इसमें ठहरना चाहिए. वो 15 सेकंड में बॉडी नीचे नहीं आनी चाहिए, बॉडी और ऊपर जानी चाहिए. इट इज अ वेरी सेफ आसन. और जब आप नीचे आए, धीरे धीरे आप बॉडी को नीचे लैंड करें. मैं एक बार और क्विकली आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आपसे करवाऊंगी, और इसके बाद हमको एक और आसन करना है. तो वी विल जस्ट स्पीड अप अ लिटिल. मैं आपका ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहती. आफ्टर द टाइम इज अप. तो बिफोर यू स्टार्ट, आप घुटने को मोड़ेंगे, पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे. बोथ नीज हिप विद अपार्ट, फीट अ लिटिल मोर वाइडर देन द हिप्स. ओके, बिफोर यू स्टार्ट हाथ आपके नीचे रहेंगे. आप चेस्ट को उठाएंगे, चेस्ट को एक्सपांड करेंगे, अपर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे. जब आप ये करेंगे ना, आपका लोअर बैक शायद जमीन से उठ जाएगा. डरने की कोई बात नहीं. दैट इज प्रेपरेशन फॉर द पोज. आप पूरी सांस भरेंगे,
सांस छोड़ते छोड़ते आप पैर के पंजे नीचे पुश करेंगे, हिप्स को स्क्वीज करेंगे, ऊपर उठाएंगे, मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। याद रखिए, कभी भी किसी भी योगा पोज में आपकी ब्रीदिंग तेज नहीं होनी चाहिए। अगर तेज हुई है तो ब्रेथ पे ध्यान ले जाइए, उसको शांत करिए, क्योंकि जब आपकी ब्रीदिंग तेज होती है तो बॉडी को स्ट्रेस का सिग्नल जाता है, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। हम स्ट्रेस लेने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, राइट? चलिए लेट जाइए। गुड, प्लीज लाई डाउन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए और अपने दोनों घुटनों में उतना अंतर रखिए जितना कि आपकी हिप्स की चौड़ाई है। जब भी आप लेटे कोशिश करें कि आपका जो सर है वो ऐसे बेयर फ्लोर पर ना हो। कोई ब्लैंकेट या कोई शॉल कुछ तो बिछाइए, अपने सर को ऐसे हार्श फ्लोर पर मत रखिए। हाथ अगल बगल, धीरे धीरे आप पहले चेस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट करके शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के पास लाएंगे और कांधों को जमीन की तरफ टर्न करेंगे। वेरी गुड नीतू जी, बहुत अच्छे। धीरे धीरे करके पूरी सांस भरेंगे पहले, और सांस छोड़ते छोड़ते हिप्स को ऊपर उठाएंगे, पैर की एड़ी जमीन में दबा के रखेंगे और हिप्स को ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड अनुराधा जी, नेल्सन सर, वेरी नाइस। स्टे देयर, ब्रीद नॉर्मली। अगर ब्रीदिंग फास्ट हो गई है तो उसको शांत करिए। ब्रीदिंग शांत होगी तो शरीर और मन शांत होगा। 5 more seconds. 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से शरीर को फिर से जमीन पर लेकर आइए। कांधों को भी आप पहले जैसे उसको नॉर्मल कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स का ब्रेक लीजिए। Whenever you are repeating a pose, take a pause of a few seconds, a few regular breaths, and then we start again. Okay, चलिए फिर से पूरी सांस भरिए। सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर उठाइए। मेक श्योर आपने कांधों को टर्न कर लिया हो, चेस्ट को ओपन कर लिया हो, और धीरे धीरे ऊपर आइए। गुड राकेश जी, आते जाइए ऊपर। With every exhalation, you will be able to push the body higher. Okay? रुकिए, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकिए। घुटने एक दूसरे से दूर नहीं गिराने हैं, उनको पास में ही रखना है। 1, 2, लास्ट 5 seconds, 3, 4 and 5। धीरे से नीचे आइए। नितिन सर, आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, पीठ को आप थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं। सर एक बार करके दिखा दीजिए प्लीज, एक्सहेल करते हुए। जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीबॉडी, आई विल जस्ट चेक ऑन नितिन सर। वेरी गुड सर, उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया। हर बार सांस छोड़ेंगे तो और थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। जितना आप ऊपर उठाएंगे उतना आपके बैक के लिए, बॉडी के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे, प्लीज कम डाउन। लेटे रहिए। अगर आप मैं फिर से जाकर लेटूंगी, मुझे आपको आखिरी आसन दिखाना है। अगर आप लेटे लेटे देख सकते हैं तो लेटे लेटे देखिए। और उसी बात पे मुझे याद आया, हम रियलाइज नहीं करते, बट हमारे बहुत सारे पेन की वजह हमारी आदतें होती हैं। Okay, so a lot of people have forgotten that we should not get up straight. When you get up straight, it is a lot of load on the spinal cord. तो कभी भी सीधा नहीं उठना चाहिए। एक हाथ आपको पीछे ले जाना है। सर्टेन ट्रेडिशन की लेफ्ट से उठना चाहिए, सर्टेन से राइट से उठना है। आपको जहां से उठना है आप उठिए, लेकिन एक हाथ आप पीछे लेकर जाइए। एक पैर को मोड़ के पूरा ऐसे साइड में टर्न होना चाहिए, ठीक है? फिर दूसरा हाथ आप जमीन पे रखें बिटवीन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, और दोनों पंजों का, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है क्योंकि यहाँ फर्नीचर है, नहीं तो ये हाथ सीधा जमीन पे होना चाहिए। दोनों पंजों का सहारा लेते हुए आपको उठना चाहिए, कोहनी के सहारे भी नहीं। वो बोलते हैं ना कि किनारे पे आकर नैया डूबी, तो लोग ऐसे साइड में लेट जाते हैं, फिर पूरा ऐसे कोहनी पे वजन लेके उठते हैं। डोंट डू दैट, इट इज अ जॉइंट। ओके, नो जॉइंट इज मेंट टू बी टॉर्चर, डू नॉट टॉर्चर द बॉडी। ओके, तो दिस इज द राइट वे टू गेट अप। हम एक आसन करेंगे क्विकली, बहुत सिंपल है। आप लोग को देख के लगता है कि आपने पहले योग अभ्यास किया है, तो आप ये आसन जानते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन। लेटेंगे आराम से, हाथ नीचे, दोनों पैर सीधे, पूरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर उसको घुटने से मोड़ेंगे और पेट के पास लाएंगे। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपको इस पैर को पेट के पास लाना है, घुटने पे नहीं पकड़ना है। घुटने के नीचे जो हिस्सा है, इसको शिन कहा जाता है, द शिन बोन। इसको आप पकड़िए, जितना कस के पकड़ सकते हैं पकड़िए। मैं अपने एल्बोस तक पकड़ सकती हूँ, अगर आप पकड़ सकते हैं पकड़िए, वरना जहां तक कलाई को पकड़िए। लेकिन आपको इस पैर और पेट के बीच के गैप को खत्म करना है।
तभी पवन मुक्तासन उसको माना जाता है। ठीक है, इसमें ट्रेडिशनली क्लासिकल पोज में गर्दन उठाई जाती है। मैं इसीलिए नहीं उठाती हूँ क्योंकि मेरी गर्दन उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करती है। इफ यू नॉट कंफर्टेबल, डोंट रेज योर नेक, जस्ट कीप द पुश टुवर्ड्स यू। वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड डिटॉक्स। ओके, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है पवन मुक्तासन। ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेंशन होता है, फ्लैटुलेंस होता है, पेट, हमने खाया कुछ नहीं है लेकिन पेट में हवा भर गई है, उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप कंफर्टेबल है। फिर आप हाथ नीचे ले लेंगे, पैर को सीधा ऊपर ले जाएंगे, सीधा नीचे ले जाएंगे। कुछ लोग पैर उठाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, नो प्रॉब्लम, आप सीधा मोड़ के उठा लीजिए, कोई बात नहीं, आसन होना चाहिए बस। ओके, सो ये हम एक बार ही करेंगे बिकॉज we've already completed the time. We'll just do this once. चलिए, पहले लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए और अपनी ओर लाके उसको पकड़ लीजिए। घुटने को मत दबाइए। नीतू जी, हाथ घुटने से दूर लेकर जाइए। हाँ, नीचे की ओर हाथ ले जाइए और फिर अपनी ओर खींचिए। घुटने पे कभी भी प्रेशर मत दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में ठहरिए। नेल्सन सर, वेरी गुड। We'll stay for last 5, 4, Nitin ji, very good. 6, Vinaya ma'am, very good. 3, 2 and 1. धीरे से पहले हाथ साइड में। प्रियंका जी, वेरी गुड। पैर को सीधा लंबा करें ऊपर और फिर नीचे लेकर जाएं। एक बार हम दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पैर को सीधा ऊपर उठाए इफ पॉसिबल, फिर घुटने से मोड़े, पेट के पास लाए उस पैर को और पकड़ ले। घुटने को नहीं दबाना है, उस चीज का ध्यान रखिए। अपनी ओर खींचिए उसको। आपके पेट और थाई के बीच में कोई गैप ना रहे, उसका ध्यान रखिए। पंजे को लंबा करिए। आपके जो पैर आपने फोल्ड किया है उसके पंजे को लंबा करिए, सीलिंग की तरफ नहीं। तेजस सर, दूसरी तरफ, वेरी गुड। लास्ट 5, वेरी नाइस। 4, 3, 2 and 1. धीरे से गर्दन नीचे अगर उठाई है तो हाथ साइड में, पैर सांस भरते हुए सीधा ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। ओके, अब सभी लोग, आपके पास जिस तरफ भी जगह है, या तो लेफ्ट हाथ पीछे ले जाइए या तो राइट हाथ पीछे सीधा, कान के पीछे सीधी लाइन में, और टर्न कर लीजिए। जो हाथ पीछे ले गए हैं उस तरफ करवट लेकर आपको लेटना है। कुछ देर आराम से लेटिए। पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में रखिए। दूसरा हाथ बॉडी के ऊपर रखिए। जल्दी जल्दी में मत उठिए, अभी हमको कोई लोकल नहीं पकड़नी है। वी आर ऑल लॉक्ड इन। अब दूसरा हाथ जमीन पर रखिए बिटवीन द चेस्ट एंड एब्स और दोनों पंजों का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठिए। इस तरह जब आप उठते हैं तो आपकी पीठ को वजन नहीं उठाना पड़ता है उठने के लिए। ओके, तो प्लीज, और कुछ नहीं तो कम से कम यही कर लीजिए, इससे आपका बैक पेन ट्रिगर नहीं होगा। समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टॉप द रॉन्ग हैबिट्स and cultivate the new way of doing something. So you have to unlearn a few things. आप लोग सब तो education वाले हैं, एक साल में हमने बहुत कुछ unlearn किया है और नया सीखा है, तो ये भी एक चीज आप अपने हेल्थ के लिए जरूर से सीख लें। So I will do a quick recap, just give me the last 1 minute कि हमने क्या किया है और क्यों किया है। हमने नेक मूवमेंट से, हमने पहले तो सीधा बैठना सीखा है और सीधा बैठना जरूरी क्यों है, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। हमने नेक मूवमेंट्स किए हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये वाले। ओके, हमने एल्बो रोटेशंस किए हैं व्हिच इज वेरी गुड अगेन फॉर दिस होल एरिया, सो वी डोंट हैव degeneration in these body parts. We have waist twist which is very good for digestion and detox as well as for muscle and the spine also. चेयर आपकी जो भी है उसको अपने रिक्वायरमेंट से कैसे कस्टमाइज करना है वो आपने सीखा है, और चेयर पे बैठ के भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। वी हैव डन मार्जर क्रिया which is very good for the spine and for digestion both. Okay, so serves both purposes. सेतुबंध आसन और बैठना तितली में या बद्ध कोणासन में पैर के पंजों को ज्वाइन करके, वो आई एम होपिंग कि आप आज से शुरू कर देंगे कुछ देर के लिए। एंड लास्टली पवन मुक्तासन which again works very good for digestion. So I hope कि आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। और जैसे आज सेशन के शुरुआत में सब लोग बोल रहे थे कि XYZ attended the सूर्य नमस्कार सेशन that you all had, तो रोज आप ये नोट्स भी एक्सचेंज करेंगे कि आज हमने ये आसन किया और ये आसन करने से हमको ये बेनिफिट हुआ। I hope that you found the session worthwhile. If there's anything you all would want to ask, I have some time, और अगर आपके पास समय हो तो I would like to hear from you. Thank you so much, Salima ma'am, for a wonderful session.
I request any of the staff members if you would like to share or if you would like to ask. Before anybody does that, अगर कुछ सवाल हैं जो आपको प्राइवेटली पूछने हैं या आपको लगता है कि बाद में कोई सवाल ध्यान में आया तो some people here have my contact details, तो आप उनके थ्रू भी मुझे सवाल भेज सकते हैं. Otherwise I'm right here. Oh, there is a form for that. Wonderful. Yeah, we have I have shared a feedback form for today's session, so I request all the teachers to please do fill in. And thank you so much, Salima ma'am. It was a wonderful session this wonderful morning, and I seriously request if Anu ma'am, would you like Yes. to say something, ma'am? Yes, Please, I want to ask a question as well. Excellent show, Salima. You did a Thank great job, because though I'm doing a little bit of yoga, I still learned a lot. That's nice. I want to know, are there any difficulties faced by the body if in case I don't practice it the right way? For example, Yes. whatever you showed just now, if you're just doing it for the sake of doing it, not following the rules, will it be harmful for the body? Yes, that is a very valid question, and I'm very glad to hear this from you, Anu ma'am. तो क्या होता है कि like I said, our body was designed to operate in a certain way. ठीक है, अब जैसे ही I'll give you an analogy. नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसीलिए जब दस्त होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो ORS का पाउडर क्यों देते हैं? उस घोल के अंदर चीनी और नमक दोनों होता है. लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं तो आपको तकलीफ होती है, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट द बॉडी वांट्स. So because the body is designed to work and operate and function in a certain way, if we practice asanas the wrong way, okay, तो हमारा जो बॉडी है उसमें तकलीफ होगी. I'll give you a simple example, शीर्षासन or the head stand. A lot of people do not know, there is a way to figure where the crown of the body is, and that part of the head has to go on the floor in Shirshasana. People get that wrong, and then they suffer from degeneration in the neck and back and all those things. तो हर चीज को करने का एक सही तरीका है. अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फायदा कम होगा, आपको नुकसान ज्यादा होगा. So in one word, the answer is a strong yes. It will harm the body. So I also heard that Surya Namaskar, for example, is a complete body workout. If you do it even twice a day, I think it's a complete body workout. Do you agree on the thing that you can keep on doing it at a very fast pace? Like what they have done just now as a yogathon. I feel that, it is supposed to be done very slow and steadily. But if you hasten this entire process just for making it powerful or God knows what, I don't understand, because many of the yoga people say that don't do it very fast. There are reasons why. Absolutely. There are reasons for that. So I will address all the aspects of your question. The first thing is, yes, शास्त्रों में हमारे जो योगा टेक्स्ट हैं, जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, they call सूर्य नमस्कार as सर्व गुण संपन्न व्यायाम. In fact, a few centuries ago, yoga was a part of routine. जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम we relieve ourselves. लोग सुबह उठ के ये सब के साथ में 10 सूर्य नमस्कार किया करते थे. It was a part of दिनचर्या, routine. It was a given कि आपको इतना तो करना ही है. Secondly, the other aspect of your question is Surya Namaskar is to be done slow for various reasons. One, it works on the entire body. अब किसी चीज को असर करने के लिए थोड़ा ठहराव जरूरी होता है. This is not cardio, this is not skipping कि आपने skipping rope लिया और आपने 1 मिनट के अंदर 500 skips कर लिए. That is a different function. I'm not putting that form of exercise down. It serves a different purpose. Yoga serves a different purpose. सूर्य नमस्कार के जितने भी steps है, हर स्टेप में ब्रीदिंग जरूरी होती है. मतलब you do some steps inhaling, some steps exhaling. In one of the steps you hold the breath, you retain it inside. It's called kumbhak. अगर आप वो सब नहीं कर रहे हैं, it is exercise, it is workout. मैंने कल परसों ही किसी सोशल मीडिया की स्टोरी पर somebody had put in कि if you do सूर्य नमस्कार you burn X number of calories. It is sad. It is missing the forest for the woods.
हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बट आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप पसीना बहा लोगे, आप कैलोरीज बर्न कर लोगे, आपको लगेगा चेहरे पे ग्लो आ गया है, बट देयर इज सो मच मोर टू अ सूर्य नमस्कार देन दैट। इनफैक्ट सूर्य नमस्कार के हर एक स्टेप में सूर्य देव का उच्चारण किया जाता है। देयर इज अ पर्टिकुलर ओम सूर्याय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम रवये नमः। हर एक स्टेप के साथ उसका नाम लिया जाता है, उसका कोरिलेशन होता है विद द चक्रास इन द बॉडी एंड सर्टेन बॉडी पार्ट्स। There is so much more. We have reduced it to just exercise. Yes, thank you so much, because I think everybody needs that clarification, because you cannot do it so fast as it should be, because it's a very slowly and steadily done kind of an asana, and they say it's a complete asana if you do it right, and it sort of gives in every aspect of the body is used. So I think that's a beautiful asana. In case if anybody does it once a day, I think that's more than enough. Exactly. And let me tell you, I will not take away from anybody who has done X number of Surya Namaskars today, but you do 10 properly, following the breath, holding it the way it should be held. Trust me, वो 10 करने में आपको जो effort लगेगा, वो 100 fast Surya Namaskar करने में उतना effort नहीं लगता है. It does not challenge your body the way 10 properly done Surya Namaskars will challenge your body. Do it. Don't believe it because I'm saying it. Do it and feel the difference for yourself. Thank you for asking, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, Rikisha. Ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am, there is a question in the chat box as well. Neetu ma'am has asked one question. Muscle strengthening is another thing that I want to do it for myself. With asanas, muscles can be strengthened, right? Yes, muscles can be strengthened. So there is a difference we need to understand. Muscle strengthening happens. जैसे मैंने अभी आपको सेतुबंद आसन बताया, लाइक हम पीठ को ऊपर उठा रहे हैं, हमारे सिर्फ हाथ जमीन पर है और हमारे फीट जमीन पर है, कांधे और जमीन पर है, बाकी सब ऊपर है. It develops a lot of asanas will strengthen the muscles of the body. But if you're looking at muscle density, जैसे लोग जिम में जाते हैं और hypertrophy उसको कहा जाता है. There are two terms which we need to understand. Hypertrophy, वो जो ऐसे bicep curl करते हैं और ये muscle बाहर आता है, that's hypertrophy. Atrophy is the opposite. हम देखते हैं ना कि एज के साथ लोग श्रिंक हो रहे हैं. They are eating the same. They've slowed down. They are not stressed, physically stressed in life. उनको काम पे नहीं जाना है, लेकिन बदन सिकुड़ रहा है. What is that? That is loss of muscle density. Okay, so that's called atrophy. People go on harsh diets. They go on starvation diets, crash diets, क्योंकि किसी की शादी है. अपनी शादी तो छोड़ो, किसी और की शादी है, उसमें हमको फलाना लहंगा पहनना है, तो हम सैलेड और सूप पे जिंदा रहेंगे. Atrophy happens. Your muscle density goes for a toss. So yoga will help you in strengthening muscles. Will it make your muscles bulge? No. You look at Baba Ramdev. He is very strong. He can walk on his hands. His muscles are strong, his bones are strong, his tissues, ligaments are in great order. Do his muscles bulge? They don't bulge. That will not happen. Don't keep that expectation from yoga and you'll be fine. Ma'am, there is another question. What's the difference between power yoga and simple yoga? मैं घुमा फिरा के जवाब नहीं दूंगी. Power yoga is a fad. Power yoga was invented to make people think that they can lose weight. Okay, I will be very forthcoming in this response. I say this to everybody. Okay, and मेरे हिसाब से ये common sensical है. 1 hour of exercise and 23 hours of nothing is equal to nothing. अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे में 800 कैलोरीज बर्न करके, बहुत सारा पसीना बहा के, आप खुद को टॉर्चर करके, मतलब बदन टूट रहा है उस कदर आपने एक्सरसाइज कर ली और उससे आपका वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. You have to change your lifestyle. You have to cultivate the right habits to be able to lose weight. But because the industry, the weight loss industry is massive, that is why many products, and the pandemic has only given rise to more businesses and insecurities. So people say ये काढ़ा पियो और ये च्यवनप्राश खाओ और ये खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. वैसे अगर इम्यूनिटी बढ़ती तो हम इतने सारे हॉस्पिटल्स ही क्यों होते और हमको सांस भरने के लिए सिर्फ वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ती, if it was that simple. So it is a process, like you all are from an academic institution. So जैसे language,
कोई भी सब्जेक्ट, there are doctors here, I'm sure there are PhDs here, okay, you studied in a comprehensive manner. हम junior KG से शुरू करते हैं, हम 10th standard 12th standard graduation post graduation diploma कितना कुछ करते हैं, फिर हम एक thesis लिखते हैं, फिर हमको PhD का खिताब मिलता है. Okay, so it does not happen just because you read one book, no? So it does not happen कि आपने 1 घंटा exercise कर लिया, उसके बाद जो मर्जी खाया, उठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, पूरा दिन बैठे हैं. It is not going to work. But people are insecure. People want to lose weight and they want to lose it like this. So then power yoga came into being. अच्छा, योगा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वजन कम होगा ना. आप 1 घंटे में हम आपको 200 सूर्य नमस्कार कराएंगे, आप महीना भर करो, आपका वजन कम होगा. It thrives on insecurity. It is a fad. If possible, do not do it. Thank you so much, ma'am. There are 2 questions related to Surya Namaskar. One is, can we perform Surya Namaskar during periods? And second is, one of the ma'am has asked that she has back pain and degeneration. Can she do Surya Namaskar? So coming to the first question first, apart from whether Surya Namaskar should be done during periods, all classical texts, this does not come from superstition. Superstition is man-made. Okay, all classical texts say कि पहले 3 दिन आप आसन practice ना करें, periods के पहले 3 दिन आप आसन practice ना करें. And then there are certain poses जो आपको throughout periods नहीं करने चाहिए, जैसे inversions, like I said, the headstand or a chakrasan, back bending poses जो है वो नहीं करने चाहिए. The reason for that is that the body is already going through a certain journey. तो आपको body को stress नहीं करना है. Unfortunately, a lot of people have excessive period pain. Period से related बहुत discomfort होता है, बहुत anxiety होती है, बहुत mood swings होते हैं. तो उसके लिए there are certain restorative poses. Setubandh asana is one of those poses. If anybody listening to me right now, or if anybody in your family has period pain, they can do Setubandh asana. There is a category of poses called restorative poses, जो आप कर सकते हैं during periods, but other poses are not recommended. I'll give you an example. हमने अर्ध पवन मुक्तासन किया, हम पेट को दबा रहे हैं, पीरियड्स में ना करें आप उसको. ऑलरेडी यहाँ पे बहुत चर्निंग हो रही है अंदर, उसको एग्रवेट ना करें. ओके, अनदर थिंग अबाउट सूर्य नमस्कार आई वुड लाइक टू टेल यू इज इट इज कॉल्ड सूर्य नमस्कार. तो उसको ट्रेडिशनली करने का समय होता है ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट, दोपहर के टाइम पे. ठीक है, आपके पास टाइम है, उसका ये मतलब नहीं कि आप सूर्य नमस्कार करें. सूर्य नमस्कार करने से बॉडी में थोड़ी हीट जनरेट होती है. तो स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, if you do Surya Namaskars in the peak of summer, in the heat, during sunlight, it may harm you. So don't do that. Okay? दूसरा जो सवाल था कि बैक पेन है या डीजेनरेशन है तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Now you have to listen to your body. Like I said, everybody has had a different journey. हमारा अपना एक सफर है जिंदगी में जिसमें हमारा शरीर हमारा साथ दे रहा है. तो अगर आपको debilitating पेन है, आपको जरूरत से ज्यादा पेन है, जो सूर्य नमस्कार में जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, the first pose we do ऊर्ध्व नमस्कार, then we do a forward bending pose, पादहस्तासन. अब जिनको लोअर बैक पेन है उनके लिए फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस आर नॉट रिकमेंडेड. तो हो सकता है कि सूर्य नमस्कार आपको जितना फायदा दे उतना ही इक्वली नुकसान दे या उससे ज्यादा नुकसान दे. ओके, तो उस चीज का आप ध्यान रखें कि हो सकता है आप सूर्य नमस्कार ना कर पाए. पहले आप वो आसन करिए जिससे आपका बैक का पेन दूर हो जाए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, देन यू रिकवर एंड देन यू डू द सूर्य नमस्कार. देन इट शुड बी फाइन. Okay, I just read a question on the chat box, so something related to the uterus. If somebody is reading, could you please read the question to me? I just caught the word uterus. Yes, ma'am. Ma'am, one of the staff members has asked, which asana do you suggest to keep the uterus in place? That's a very good question. Okay, prolapsed uterus is a very common condition. और pregnancy के बाद में there is something known as Mahamudra. Okay, थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट योग बहुत ही डीप सब्जेक्ट है. तो बॉडी के अंदर थोड़े से बंद हम लगा सकते हैं. जैसे हम चिन लॉक करते हैं, इसको जालंधर बंद कहते हैं. हम नेवल को लॉक करते हैं, उसको उडियान बंद करते हैं. और एनस को बंद करते हैं, उसको मूल बंद कहते हैं. महामुद्रा इज वन पोज जिसको किया जाता है, इन विच व्हाट यू कैन डू इज द यूट्रस कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. जो इसीलिए आफ्टर डिलीवरी हम ये ज्यादा करवाते हैं ताकि अगर बिल्कुल भी स्कोप हो तो उसको खत्म कर दिया जाए. अदरवाइज लेटर इन लाइफ इट कैन बी अ ट्रबल
ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है. Now that is something that needs to be taught properly. And I'm not sure if this time can give us, but maybe if you have a teacher or if you join a class, you can request the teacher to teach you to do Mahamudra. Okay, Mahamudra is the word. Anything else? Thank you so much, ma'am, for answering all the questions so patiently. And actually, one of the staff members have also said this has been the best yoga session ever in these past years. So I'm very much glad to have. Yeah, we are very much glad to have you here. And even some of the teachers have suggested if they can have a session in the morning regularly, so even they would be feeling very much good to attend regularly. So we will, sports committee will surely look into it and arrange a session in the morning. And thank you so much, ma'am. And I am really out of words, I must say. I guess Mala ma'am is not around. She had a meeting, so she had to leave, I guess. No, Mala ma'am, are you here? I saw Mala. Mala ma'am, are you here? I would Yes, also like to Rikisha. mention. Yes, ma'am. Ma'am, Yeah, yes, would you Rikisha. like to, ma'am, would you like to say something, ma'am? Oh, no, I think that everybody else has summarized. I just would like to say that I am going to tell myself to start being regular tomorrow and to Yes, ma'am. practice at least a few of the things that we have been taught today. And I hope everybody else also does so. So thanks again to ma'am for giving us her time. Thank you. And thanks to the sports committee. And I hope you all keep motivating us. And thank you to all the teachers who have joined without fail. And who have also, I could see everybody was putting in their best to practice. Thank you. Thank you. so Thank much, you ma'am. very much. It was a pleasure being here. Thank you for the wonderful attendance and participation. Thanks a lot. Have a lovely day. Thank you so much, ma'am. Thank you to all the staff members. We now end this session. Thank you. Well done, Rikisha and the team. Fantastic. Thank you, Polemy. Thank you, Thank you, Rikisha. ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, Salima. Thank you, Salima. Thank you, sports committee. Thank you. Bye-bye.